Hello guys, welcome you all in today's new series of Das Kadam. In this series, I have passed your 10 IIT questions which are most important and have maximum probability of coming in this year examination. And in this question I will solve. You will get question on your screen and I will show you the solution. Okay, so let's get started. See, the first question is, if the cube root of unity are 1 omega square, then roots of the equation x minus 1 whole cube plus 8 is equals to 0 are. मीन्स हमें यहाँ पे रूट्स बताना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स बताना है. सिंस वी नो दैट एक्स माइनस वन क्यूब इज इक्वल्स टू -8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. -8 को हम -2 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं. देन वी हैव this way we can write then x minus 1 by -2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं. और यहाँ पे से फिर हम इसको सिंपल है कि लेट कर लेना है जो ये पूरा क्वांटिटी है x माइनस 1 बाई -2 को टी पुट कर लेंगे. देयरफॉर टी क्यूब हमारा 1 हो जाएगा. टी क्यूब 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे टी क्यूब इसको टी लिए हैं तो अगर टी क्यूब करेंगे तो टी क्यूब 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इफ़ t is equals to 1, if t is equals to 1 then x minus 1 by -2 is equals to 1 implies that x minus 1 is equals to -2. therefore x का पहला वैल्यू आ जाएगा -1. उसी तरह अगर हम t को ओमेगा पुट करते हैं तो वो x माइनस 1 बाई -2 इज इक्वल्स टू ओमेगा implies that x minus 1 is equals to -2 ओमेगा. therefore x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 minus 2 ओमेगा. ओके, next is if we take t as omega square, then we will get x as 1 minus 2 omega square. Okay, therefore the option B, that is -1 1 minus 2 omega and 1 minus 2 omega square is the correct answer. Okay, and this question is from 1979. Okay, and this is very important question, and this question has maximum probability of coming in examination, or this concept can be repeated. And if you want to revise the concept of cube root of unity, then you can refer to my lecture. I have taken, you can find it in my playlist, complex number in one shot, part 1 and part 2. Okay, next question says that the smallest positive integer, means we have to calculate here, find out the integer and for which this 1 plus iota by 1 minus iota to the power n is equals to 0. Okay, and here we will use the concept of complex number, and we know that i4 is equals to i होता है. ओके, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है. उसी तरह पहले तो हम इस इक्वेशंस को रेशनलाइज कर देंगे. रेशनलाइज हम कैसे, रेशनलाइज सबको आता होगा, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा. इससे मल्टीप्लाई करने के बाद टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था. 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर n. ये n होगा. ओके, ये n है. नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. देयरफॉर आफ्टर कैलकुलेटिंग आयोटा स्क्वायर -1 होता है. देयरफॉर 1 -1 विल कैंसिल ईच अदर, एंड -1 नीचे में भी होगा तो -1 minus 1 इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर न्यूमरेटर हो जाएगा 2 आयोटा एंड डिनोमिनेटर बचेगा 2. देयरफॉर 2 कट जाएगा. आयोटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1, and we know that smallest value of n here is 4 because iota to the power 4 का value होता है 1. therefore and our options are 8 12 16, so there is no options of 4, and option D says that none of this, so option number D is none of this is the correct answer. Okay, and this question is from 1980. next question says that the complex number x is equals to x plus iota y which satisfies the equation mod of z minus 5 iota divided by z plus 5 iota is equals to 1 lie on. Options are the x-axis, the straight line y is equals to 5, a circle passing through the origin, and D is none of this. Question is from 1981. Okay, and this is the solution. Here let us suppose this is given in the question that z is equals to x plus iota y. Okay, therefore since we know that mod of z1 by z2, ये हमारा concept booster है. we know that mod of z1 by z2 is equals to mod of z1 by mod of z2.
सो मॉड ऑफ जेड माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई जेड प्लस 5 आयोटा प्लस इज इक्वल्स टू 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हो जाएगा यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट करके पहले देख लेते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे से उसके बाद हम कर लेंगे इसको जैसे कि ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये वाला, उसी तरह हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मॉड अलग अलग निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करके उसका रूट लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर रूट अंडर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट इज इसके बाद हम 1 से इक्वेट 1 की इक्वल है दोनों, तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको RHS की साइड लेके दूसरी साइड लेके जाएंगे। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर जो आता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। यहाँ से 20y देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, LHS और RHS में दोनों इक्वल है इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। y square and y square will also get cancelled up, and 25 plus 25 and plus 25 will also get cancelled, though. So we have remaining with 20y is equals to 0, therefore y is equals to 0. That is it lies on the x-axis, and the correct answer of this question is option number A, that is it lies on the x-axis. Okay, this question is also from 1981. And now the next question says that if z is equals to root under 3 by 2 plus iota by 2 to the power 5 plus root under 3 by 2 minus iota by 2 to the power 5, then options are real part of z is equals to 0, imaginary part of z is equals to 0. See, real part of z is greater than 0 and imaginary part of z is also greater than 0. Option number D, real part of z is greater than 0 but imaginary part of z is less than 0. And this question is from 1982. Okay, and this is also an important question, since in this we have to use the De Moivre's theorem. If you want to revise De Moivre's theorem and if you don't know De Moivre's theorem, then you can refer to my one short video which you can find in my playlist section, and there you can revise, from there you can revise. Okay, so let us say यहाँ पे De Moivre's theorem क्या बोलता है, यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं हम। De Moivre's theorem बोलता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को हम e टू द पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हैं। एंड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 to the power 5 plus root under 3 by 2 minus iota by 5 iota by 2 to the power 5। therefore हम यहाँ पे cos पाई बाई 6 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, तो हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 की जगह पे हम साइन पाई बाई 6 लिख दिए हैं। ओके, नेक्स्ट इज रूट अंडर 3 बाई 2, रूट अंडर 3 बाई 2 की जगह cos पाई बाई 6 एंड माइनस आयोटा ऑफ साइन पाई बाई 6 टू द पावर 5। हम यहाँ पे De Moivre's थ्योरम लगाएंगे, cos थीटा, थीटा यहाँ पे पाई बाई 6 है, तो देयरफॉर e टू द पावर आई थीटा टू द पावर 5। ओके, e टू द पावर आई पाई बाई 6 टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर माइनस आई पाई 6 टू द पावर 5। ये समझ में आया, ये कैसे हुआ देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर आई थीटा, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है cos पाई बाई 6, थीटा की जगह पाई बाई 6 है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये बस इतना ही समझना है हमें। ये दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाई 6 है, तो यहाँ पे लिख दिया हम थीटा की जगह पे पाई बाई, और वो 5 से होल रेज टू पावर 5 है। सिमिलरली वहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6 टू द पावर 5। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक बार De Moivre's थ्योरम लगाएंगे। z इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 प्लस cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, और यहाँ पे z का वैल्यू आ गया 2 cos पाई 5 पाई बाई 6। ओके, तो z का cos 5 पाई बाई 6 का वैल्यू होता है माइनस रूट अंडर 3 बाई 2, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू आ जाएगा वो माइनस रूट 3 आ जाएगा, जिसको हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, हमको पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे 1 हो गया, तो 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस रूट 3 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रूट 3 प्लस आयोटा 0। ओके, देयरफॉर फ्रॉम दिस z का वैल्यू से हम ये कैलकुलेट, ये
निकाल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो बिकॉज इट इज माइनस इन माइनस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो एंड अवर ऑप्शंस आर रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, नहीं रियल पार्ट लेस देन होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, सो वी गॉट आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. Okay, next question says that the points z1, z2, z3 and z4 in a complex plane are the vertices of triangle taken in order if and only if. Options are z1 plus z4 is equals to z2 plus z3, b z1 plus z3 is equals to z2 plus z4, c z1 plus z2 is equals to z3 plus z4, and option d is none of these. And this question has also come from 1983. 1983, yeah. And see the solution. First of all, we will draw a diagram, and diagram is like this. This is point A, z1, b, z2, c, z3 and d, z4. Okay, and at O point, this is O point is midpoint which bisects AAC and DB diagonals. Okay, so O point अगर midpoint theorem से निकालते हैं, midpoint theorem लगाएंगे तो z1 plus z3 by 2 हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z2 plus z4 by 2, and from this we will get that z1 plus z3 is equals to z2 plus z4. ये कॉन्सेप्ट्स में मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही होता है कि अगर डायगोनल से पैरेललोग्राम का तो वो उसका रिलेशन यही होता है चारों पॉइंट्स के, z1 plus z3 is equals to z2 plus z4. ये वर्बली याद होना चाहिए. और अगर ये नहीं आता है तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, रोम्बस होते हैं, ट्राइंगल्स होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसके लिए आप मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर वन शॉट का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ रेफर कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बली याद रहना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट next question is on your screen, and read the question. If z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod of z1 plus z2 is equals to individual mod of z1 plus individual mod of z2, okay, then argument of z1 minus argument of z2 is equals to, option A is minus pi, B is minus pi by 2, C is 0, D is pi by 2 and A is pi. Okay, so here is the solution. क्या बोलता है, z1 plus z2 का अगर हम z1 प्लस z2 का स्क्वायर जैसे कि हमें दिया हुआ है, तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z1 इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है. अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा z1 प्लस z2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे z1 माइनस z2 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड देखो यहाँ पे पहले ये वाला समझ में आया, ये क्यों लिया, बिकॉज अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट का स्क्वायर दोनों इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी पता हुआ है. क्योंकि देखो अगर एक्स जेड को तुम लेट कर लो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई. पहले z1 को हमको लेट करते हैं, z1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z2 इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई. ओके, तो z1 का मॉड निकालेंगे वो कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. z2 का मॉड निकालेंगे तो वो कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे भी वही किया, z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. इसको ऐसे किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाया, डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होगा, हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझ लो कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 कॉस थीटा. ओके, इज इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 कॉस थीटा. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों LHS RHS इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर 4 मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 cos थीटा इक्वल्स टू 0. Therefore cos theta is equals to 0, थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2. Therefore argument of z1 minus argument of z2 is equals to pi by 2, which is our required answer, and the correct answer option in this question is option number D. This question is also from 1987. Okay, and this is also an important question which uses your concept on argument. Okay, next question says that next question is on your screen, and it says that the value of this summation of n is equals to 1 to 13 I n plus iota n plus 1 where iota is equals to under minus 1 equals to. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हालांकि ये तुम बहुत अगर लंबा प्रोसेस करोगे तो लंबा भी जाएगा, लेकिन शॉर्ट में भी बन जाएगा. जैसे कि मैंने पहले ही स्टेप दिखाया था, ये वाला अगर ऐसे तुम करते जाते हो तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 टू द ऐसे ही
अप टू आयोटा 13 प्लस आयोटा 14। और एक तुम ऐसे भी कर सकते हो, समेशन इसको ये कर दो, मीन्स तोड़ दो, जैसे कि समेशन ऑफ आयोटा टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 1 to 13 एंड समेशन ऑफ आयोटा टू द पावर एन प्लस 1 फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 1 to 13। हम इसको ये जो पहला लिखे आयोटा टू द पावर एन, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 13 से आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू 13, एंड सेकेंड लिख सकते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस अप टू आयोटा 14। ओके, सो यहाँ पे हमारा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है -i, एंड आयोटा 4 का वैल्यू होता है +1। ऐसे ही रिपीट करेगा 12 तक, और लास्ट में आयोटा 13 आएगा, तो 12 तक हो जाएगा 1, और 13 मीन्स आयोटा से बचेगा। ओके, वैसे यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 -i प्लस 1 प्लस i अप टू 12, एंड देन वी विल लीव विथ आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे से हमारा i बचेगा, यहाँ से i स्क्वायर बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा i स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि -1 होता है। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड आंसर विल बी i -1, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम 1998, और ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट अगर उस समय अच्छे से हम एग्जाम अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, समेशंस देख के ही बहुत बच्चे डर जाते हैं, बट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन says that the complex number sin x plus iota cos 2x and cos x minus I sin 2x are conjugate to each other for x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin x माइनस आयोटा cos 2x इज इक्वल्स टू cos x माइनस आयोटा sin 2x, देयरफॉर a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, ये लिख सकते हैं। एंड सिंस रियल पार्ट अगर करें, यहाँ पे रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, तो रियल पार्ट कंपेयर कर लेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, देयरफॉर tan x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट विल बी cos 2x इज इक्वल्स टू sin 2x, बट विच इज़ इक्वल्स टू tan 2x इक्वल्स टू 1। हमारा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला, ये इक्वेशन हमारा मिला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमारा जो वैल्यू हमें पता चलेगा कि, एंड वी नो दैट tan x इक्वल्स टू tan 2x नहीं होता है। So therefore there is no value of x for which this condition is satisfied. Okay, and the correct answer of this question is option number D, that is no value of x satisfies this complex number. Okay, next question says that the question is on your screen, and the question says that let alpha and beta be the roots of the equation x square plus x plus 1 is equals to 0. The equation whose roots are alpha to the power 19 and beta to the power 7 is, and option A is x square minus x minus 1 is equals to 0, B is x square minus x plus 1 is equals to 0, C is x square minus x plus x minus 1 is equals to 0, and D is x square plus x plus 1 is equals to 0. Here we can use the hit and trial method. Okay, see let us assume that alpha, see the option number 4, that is x square plus x plus 1. Okay, and let alpha is equals to ओमेगा एंड बीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देन अल्फा 19 एंड बीटा 7 का वैल्यू हो जाएगा अल्फा ओमेगा टू पावर 19 इंटू ओमेगा टू पावर 14, एंड ओमेगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ का इसका जो पावर है वो सम हो जाएगा, दैट इज 19 प्लस 14, देयरफॉर ओमेगा टू 33, देयरफॉर वी कैन राइट ओमेगा टू द पावर 33 एज ओमेगा क्यूब टू द पावर 11, एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। इन दिस क्वेश्चन हियर वी विल यूज दिस वैल्यू एज we know that 1 if the cube root of unity, then 1 omega and omega square are its root, then 1 plus omega plus omega square is equal to 0, omega to the power 3n is equals to 1, omega का जहाँ omega का वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. Okay, this is just for concept builder in this question, and if we since alpha to the power 19 and beta to the power 7 are the roots, therefore product of root, we have find that product of root is equals to 1, and now we will find the sum of the roots, that is alpha to the power 19 plus beta to the power 7 is equals to omega to the power 19 plus omega to the power 7, therefore omega to the power 19 को omega to the power 18 and omega into omega plus omega to the power 12 plus omega square, ओमेगा टू द पावर 18 को हम 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ओमेगा 3 का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा और यहाँ से बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड सिंस वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर अल्फा 19 प्लस बीटा 7 का वैल्यू भी आ जाएगा
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1, देयरफॉर अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू -1. Since the sum of the roots of a quadratic equation is -1, product of roots of a quadratic equation is 1, and we know that from this formula that equation कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots, and from that we will get that option D as our correct answer. Okay, next question is on your screen, and the question says that if omega is a cube root of unity, then 1 plus omega प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल रेज टू 7 इक्वल्स टू, मीन्स हमें यहाँ इसका सिंपल है, इसका वैल्यू निकालना है. एंड वी नो दैट फ्रॉम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7. देयरफॉर -2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -2 टू द पावर 7 एंड ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7. देयरफॉर -2 टू द पावर 7 का वैल्यू होगा -128 एंड ओमेगा 14 बचेगा, तो ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 टू द पावर 4. ओमेगा 3 टू द पावर 4, ओमेगा 3 का वैल्यू होता है 1, सो यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -128 ओमेगा स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, now the next question is on your screen, and this question is from 2003, and the question says that if mod z is equals to 1 and w is equals to z minus 1 by z plus 1, where z is not equals to 0, then real part of omega equals to, see the solution, z is equals to x plus iota y, z is equals to x plus iota y. Therefore mod of z is equals to root under x square plus y square is equals to 1. देयरफॉर z माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस 1 को x प्लस आयोटा y माइनस 1, देयरफॉर x माइनस 1 विल बी द रियल पार्ट माइनस प्लस आयोटा y. देयरफॉर z माइनस 1 को हम x माइनस 1 प्लस आयोटा y लिख सकते हैं. सिमिलरली z प्लस 1 को x प्लस 1 प्लस आयोटा y लिख सकते हैं. देयर एंड ओमेगा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल्स टू z प्लस -1 बाई z प्लस 1. यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज का हमको फंडा पता है कि अगर जो डिनोमिनेटर में होता है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको अपोजिट साइन करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वैसे कि x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, यहाँ प्लस था तो इसीलिए हम यहाँ माइनस करके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए. तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई. सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जैसे x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. न्यूमरेटर में हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू निकलेगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आई स्क्वायर के वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. And next is omega is equals to x square minus 1 plus y square plus iota y is equals y x plus 1 minus x square minus x plus 1. It's not x square plus y, it's not x square, it is x plus 1. Okay, and denominator में हो जाएगा x plus 1 square plus y square. Therefore omega is equals to x square plus y square minus 1 plus iota square y divided by x square plus 2x plus 1 plus y square. Okay, therefore the real part of omega को हम लिख सकते हैं x square plus y square minus 1 by x square plus y square plus 2x plus 1. सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कहाँ से है, ये ऊपर मैंने लिखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यहाँ पे देखो z मॉड z का वैल्यू है 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट अंडर में है तो 1 है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सिमिलरली उसको यहाँ यूज़ किए हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 1 हो गया, 1 माइनस 1 0. देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 0. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. That's all for today's 10th question, and I hope this video will be useful for you. Thank you.